Hello, good morning students. Myself Saurabh Rai from SBS Children Academy, Kalan, Jaunpur. Class 10th students, how are you? I think you are fine at your home. It is most important to take online class for your examination, for your study. So I humble request to you, and it is my suggestion to you to take online class on proper time and give also test on proper time, and please attend the class according to your timetable and give response if anything you are unable to understand for any subject. Okay, last classes we had already discussed what is the pH, power of hydrogen ion concentration. With the help of pH we can measure the strength of the solution, whether it is acidic or whether it is basic. Now the next topic is salt. Salt is the very important role in our daily life. It's play very important role in our food. Without salt there is no taste we can feel in our food. You understand the salt that is only you eat at your home. No, that is different type of salt, their preparation, their properties. In this lecture, in this video, we are going to discuss the topic of salt. What is the salt? Salt, in first chapter we had already discussed the neutralization reaction. The definition of neutralization reaction is that when an acid reacts with base, it forms salt and water. It forms salt and water. It means that salt are prepared by an acid and base, and it is prepared by the neutralization reaction. तो दोनों तरफ से आप define कर सकते हैं. But in your chapter, in your topic, how can you define the salt? Salt are the ionic compounds. Why it is called ionic compounds? Wait, after some time we can see. Ionic compounds formed by the combination of a cation from a base. कोई base लेंगे हम, बेस चलिए मान लीजिए हमने आपको ले लिया NaOH इक्वल्स केटायन फ्रॉम अ बेस. इस NaOH में बेटा जो Na प्लस और OH माइनस है, ये Na प्लस इज कॉल्ड केटायन एंड OH माइनस इज कॉल्ड एनायन. तो इस बेस का कौन सा पार्ट लेंगे? केटायन वाला, Na प्लस वाला फ्रॉम अ बेस एंड एन एनायन फ्रॉम एन एसिड. चलो एसिड ले लिया एक्वस. अब इस एक्वस का एनायन वाला पार्ट, इस एसिड में H प्लस और Cl माइनस है और ये पार्ट इसका एनायन है, तो इसका मतलब Cl माइनस. देन वी फॉर्म साल्ट दैट विल बी NaCl एंड वाटर एज अ लिक्विड, दैट इज एक्वस, दैट इज साल्ट एंड वाटर. ओके, जब किसी भी एसिड का जो एनायन का पार्ट है और बेस का जो केटायन का पार्ट है वो दोनों रिएक्शन करते हैं तो इट विल बी फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दैट इज अ बेस एंड दैट इज द एसिड. ओके, हाउ वी कैन नेम द सॉल्ट. सॉल्ट का नाम कैसे रखेंगे? सॉल्ट्स हैव टू पार्ट्स देयर नेम. द फर्स्ट पार्ट comes from the name the metal of the base. बेस के पास जो मेटल है उसका नाम आप रखेंगे. तो बेस के पास मेटल कौन सा है? सोडियम है. तो इस साल्ट का नाम क्या होगा? पहले सोडियम होगा. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट कम्स फ्रॉम द एनायन ऑफ द एसिड. एसिड का जो एनायन है Cl, तो इसका मतलब क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोराइड. ओके, दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस एंड एसिड. Base NaOH, sodium hydroxide, and acid hydrochloric acid. The name is sodium chloride. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से जो साल्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? NaCl, and that is called also common salt और table salt. ओके, ये तो हो गया आप नाम कैसे रखेंगे. How can you measure the pH of the salt? pH, सॉल्ट का pH कैसे मेजर करेंगे बेटा? दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन मटेरियल. जितने भी साल्ट आपने बनाए हैं उसका pH क्या होगा? दैट इज डिपेंड अपॉन दैट एसिड एंड दैट बेस बाय विच इट इज फॉर्म, जिसकी हेल्प से ये बना हुआ है. इफ यू टेक ए स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस, अगर आपने
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस ले लिया तो पावरफुल कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इट मींस दैट साल्ट जो फॉर्म होगा वो एसिडिक साल्ट होगा। एंड यू नो वेरी वेल द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड इज लेस देन 7, सो द पीएच वैल्यू ऑफ दैट सॉल्ट विल बी लेस देन फ्रॉम 7. Okay, and the example of ammonium chloride. Ammonium chloride that is formed by, देखिए अब हमने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर आपने HCl ले लिया, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ना, और वीक बेस ले लिया हमने NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस का कैटायन और एसिड का एनायन, तो NH4Cl बना। तो अब इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर एसिडिक होगा। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया, तो बना कैसा? एसिडिक सॉल्ट, जिसकी पीएच कितनी होगी? जिसकी पीएच 7 से कम होगी। चलिए अब अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक NaOH, ओके, एंड वीक एसिड H2CO3 ले लिया, कार्बोनिक एसिड, तो इट विल फॉर्म Na2CO3, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है ना, तो नेचर भी अल्कलाइन या बेसिक ही होगा, तो दैट्स पीएच वैल्यू ग्रेटर देन फ्रॉम 7। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की हेल्प से कैसा सॉल्ट बनेगा? आपका अल्कलाइन सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड और वीक बेस लिया आपने, दोनों का नेचर वीक है, तो मे बी पॉसिबल इट विल बी स्लाइटली एसिड और स्लाइटली बेस, दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर. pH value depend upon the nature. If you take the both strong acid with strong base, then it will be neutral in character and the pH is equal to the 7. For example, NaCl, potassium nitrate, sodium chloride, potassium nitrate or sodium sulfate is the neutral salt which have the pH value lies equal to the 7. Okay, that all about the salt. Important, with the help of neutralization reaction we can prepare salt. Naming, first part from base metal and second from acid anion. pH strong, neutral, weak, possibility slightly acid, slightly base, strong acid, weak base, acidic nature, strong base, weak acid, basic nature. Okay, now come on the next topic, types of salt. In first, common salt or table salt, NaCl, that is sodium chloride, chemical name sodium chloride. Okay, the preparation methods, जितने भी साल्ट है उसका हमको क्या पढ़ना है? उसका हमें फॉर्मूला पढ़ना है, केमिकल नेम पढ़ना है, प्रिपरेशन है और यूजेस है. ओके, तो हाउ कैन यू प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट? स्टूडेंट्स, इन जनरल द कॉमन साल्ट्स आर डिपॉजिट इन large quantity. Okay, here I mention the large deposit of sodium chloride are present in the various parts of the world. Large deposits of the sodium chloride are present in the various parts of world. वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जो सोडियम क्लोराइड है उसका लार्ज डिपॉजिट मिलता है, एंड दैट लार्ज डिपॉजिट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. दिस इज रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट, ये जो आपका लार्ज डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं, एंड हैव probably formed as a result of evaporation, जिसके evaporation के थ्रू आप प्रिपेयर करते हो. And the second method of prepare common salt by the solar evaporation of sea water. sea water का सनलाइट के प्रेजेंस में इवेपोरेशन होता है, तो वहां भी हमको कॉमन सॉल्ट मिलता है. ठीक है, तो एक तो रॉक सॉल्ट से मिल जाएगा हमें कॉमन सॉल्ट, और दूसरा जो है सी वाटर से मिल जाएगा. दैट इज द प्रिपरेशन मेथड. यूज कहाँ है? इन कुकिंग फूड, इंप्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड, ये तो पता ही है आपको. It is the raw material for the preparation of the number of chemicals such as NaOH, Na2CO3, NaHCO3 and HCl. डिफरेंट केमिकल्स जो आप सॉल्ट यूज करते हैं, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, कॉस्टिक सोडा हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हो आप, उन सब की प्रिपरेशन किससे होती है? कॉमन सॉल्ट्स की हेल्प से ही होती है.
फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी, प्रॉपर वर्क करने के लिए भी साल्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. एंड नेक्स्ट, बायोलॉजिकली इट परफॉर्म्स अ मेजर रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की कंडक्शन के लिए, जो आपकी नर्व्स होती है उनकी इंपल्शन के लिए इसका यूज होता है. आफ्टर दैट इट इज द सोर्स मटेरियल फ्रॉम विच बॉडी प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस. आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें जो HCl का प्रिपरेशन होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट. दैट इज द कॉमन सॉल्ट. अगेन आई रिपीट, प्रिपरेशन by the evaporation of सी वाटर का इवेपोरेशन करा लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा. वर्ल्ड के वेरियस प्लेस पे ये जो आपका कॉमन सॉल्ट है, ये लार्ज डिपॉजिट में होता है, जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट. उसका इवेपोरेशन आप कराएंगे तो भी आपको कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा. 2 तरीका हो गया. यूजेस जो है, कुकिंग फूड, इंप्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड. बिना इसके खाना पूरा का पूरा अधूरा रहता है, पता ही आपको. जितने भी आपके मेन फंक्शनिंग आपके पास जो भी रॉ मटेरियल होता है NaCl सबका, इन सब का, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें या HCl ले लें, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो NaCl, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट ही है. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. आप कहते हैं ना आयोडीन की जो कमी होती है तो उससे ग्वाइटर या अलग अलग जो है वो डिजीज होती हैं, तो वो भी आपका कॉमन सॉल्ट का ही यूज है. बायोलॉजिकली इट परफॉर्म अ मेजर रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स etc. इट इज द सोर्स मटेरियल फ्रॉम विच बॉडी प्रिपेयर, सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस. ओके, इन नेक्स्ट there are 3 salt are remaining. Our next will be, that is NaOH, जिसे आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, okay, the next salt is sodium hydroxide. Sodium hydroxide formula is NaOH. Na stand for sodium, OH that is the hydroxide. After NaCl we are now discussing about the sodium hydroxide. Common name, the common name of sodium hydroxide is caustic soda. Generally everyone knows as a caustic soda. It is called lye या लेग भी आप इसको कह सकते हो. Okay, how can you prepare? First preparation, then property, then uses, and this one. How can you prepare sodium hydroxide? It is prepared by the सोडियम क्लोराइड. अभी हमने लास्ट में सोडियम क्लोराइड का यूज देखा था और वहां बोला भी था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं. देन तो वी टेक अ सोडियम क्लोराइड एक्वस एंड रिएक्शन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट्स, इफ एनी कंपाउंड आर react with water in the presence of electric current, that process is known as electrolysis. So it is prepared on large scale by electrolysis of a conc NaCl. सोडियम क्लोराइड कॉन्क रहेगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट. दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन. ये जो आपका कॉन्सेंट्रेट NaCl होता है इसी को ब्राइन बोला जाता है. कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइन. The concentrated NaCl solution, aqueous solution, the concentrated aqueous solution of sodium chloride is called brine. So when brine treated with water in the presence of electric current, it forms sodium hydroxide, that is caustic soda. And in this process at electrolysis है, तो electrolysis का सिस्टम सेटअप कैसे होता है. ये आपका कंटेनर हो गया, ये आपने वाटर लगा दिया और आपने ये 2 प्लेट लगा दी. दैट यू यूज एनोड एंड वन इज कैथोड. और ये आपने बैटरी के टर्मिनल से इसको ऐड कर दिया. ये मान लीजिए आपका एनोड और ये कैथोड. दैट यू कंसीडर एज ए एनोड एंड दिस वन कंसीडर एज कैथोड. तो व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व NaCl, so when you pass electric current, the Na is present as a plus form, it goes as negative electrode is called cathode, and the Cl goes as anode. तो एनोड पे क्या मिलेगा आपको, Cl. तो क्लोरीन गैस पे निकलती है, एंड H2O, H+ and OH-,
H+ always goes as cathode, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस. This process is known as chlor-alkali process. Chlor-alkali process. Why it is called chlor? Chlor stand for chlorine gas evolution and alkali stand for sodium hydroxide a base production. Okay? तो at cathode hydrogen gas is obtained and at anode chlorine gas is obtained, and its use is very important. It is a industrial use and the manufacture the different type of compounds we can see in next topic. Okay, this process is known as cold alkali process. कभी कभी क्लोर alkali process से भी पूछा जाता है what is the chlor alkali process. तो सीधा सीधा आप लिखोगे the reaction of brine means concentrated sodium chloride with water, or the electrolysis of sodium chloride, formation of caustic soda and production of hydrogen and chlorine gas is called chlor-alkali process. What is the nature of sodium hydroxide? It is white crystalline solid. सफेद कलर का क्रिस्टल सॉलिड होता है. It has corrosive action on skin. अगर आप इसको स्किन पे रखेंगे तो corrosive action मतलब खुरदने वाला, थोड़ा सा जो आपका स्किन है वो डैमेज हो सकती है. It is readily soluble in water. पानी में easily soluble हो जाता है. Its solution is soapy in touch. अगर इसका आपने वाटर में सोल्यूशन प्रिपेयर किया है तो इसका टच जो होगा वो सोपी नेचर, साबुन के जैसा आएगा. Now come on the use of caustic soda. In the manufacture of soap, detergents, paper, artificial silk, जिसे for example rayon and dyes, color component, जितने भी ये आपके सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, पेपर होता है, आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है और डाइज होता है, ये किसके हेल्प से बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा. इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में, अब इस पे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मैं आपको समझाऊंगा, रिफाइनिंग का प्रोसीजर भी नहीं है, बस केवल आपको यूज लर्न करना है. एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर द मशीन्स एंड मेटल सीड और मशीन को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट में एज अ फंक्शनल ग्रुप और एज ए रिएजेंट इसके हेल्प से कई रिएक्शन जो है वो अकर होते हैं. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट केमिकल के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है. किसमें? सोडियम नाइट्राइट, NiTRITE, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड. बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है. ओके, इन मसर्सिंग कॉटन, आप सिलाई वाला धागा देखें ना, वो उसको प्रिपेयर करने के लिए भी आपको कॉस्टिक सोडा यूज किया जाता है. ओके, ये तो हो गया आपका NaOH का यूज. नाउ कम ऑन द व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हिच इवॉल्व in the chlor-alkali process, which evolved in the preparation of caustic soda. The hydrogen gas is used in the manufacture of ammonia and methyl alcohol. Methyl alcohol means CH3OH, ammonia, that is ammonia gas, NH3. अमोनिया के और मेथिल अल्कोहल के फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है. इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, very important acid and very important compound in our daily life. As a rocket fuel in liquefied form, इसको as a rocket fuel यूज किया जाता है, liquefied किया जाता है, इसको गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके रॉकेट में इसको डाला जाता है और ये रॉकेट के फ्यूल का काम करते हैं. For the hydrogenation of oils to give fat, अगर आपने वेजिटेबल ऑयल लेके हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया तो आपको वेजिटेबल घी, डालडा सुना है आपने? डालडा, मयूर सुना होगा, मयूर, दैट्स आर प्रिपेयर बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस. स्टूडेंट्स, इन क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्लोरीन ऑल्सो इवॉल्व, क्लोरीन गैस भी निकलती है एनोड पर, उसका क्या यूज है? नाउ सी, एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग जो आपका होता है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट का मतलब साफ कर देगी, कपड़े की सफाई के लिए जो है, जो कपड़ा गंदा हो जाता है, मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें गंदगी होगी, उसकी सफाई के लिए इसको काम किया जाता है. ब्लीचिंग तो आप भी करवाते हैं, खासकर लड़कियां जो ब्लीचिंग बहुत ज्यादा करवाती हैं. उसमें होता क्या है, एक लेयर बनाते हैं, उसके बाद जितना भी कचरा आपका होता है, जितने भी डर्ट होते हैं वो आपके साफ हो जाते हैं, वही ब्लीचिंग होता है. फॉर स्टरलाइजिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, आप शहरों में या
गांव में भी कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें क्लोरीन की गोली डाली जाती है। क्यों? वाटर को साफ करने के लिए, स्टरलाइजिंग, सफाई के लिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफॉर्म CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपका होता है क्लोरोफॉर्म भी होता है, CCl4 भी होता है, DDT, इन सब को बनाने के लिए आपकी क्लोरीन गैस लगती है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड और प्लेटिनम और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी क्लोरीन गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन मतलब उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। वो क्योंकि माइंस में होता है, तो माइंस से आप कन्वर्ट लाते हो, उसमें से मिट्टी और सारी चीज़ें, डस्ट, वो सब निकालते हैं, तो उसके एक्सट्रैक्शन में भी क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब PVC की पाइप सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड PVC। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक फास्जीन, मस्टर्ड गैस एंड टीयर गैस। फास्जीन गैस, मस्टर्ड गैस एंड टीयर गैस, आंसू, जो आंसू गैस बोला जाता है, जिसको कहीं दंगा होता है या कहीं इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वहाँ पुलिस जो है इस टीयर गैस का यूज़ करती है। वो किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। तो दैट इज अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते पॉइंट्स कि इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टू एंड अदर। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक I am not sure, but maybe possible. The next lecture will be last lecture of your second chapter. Okay? And students, again I repeat, carefully you take the class on time. Okay? Thank you and have a nice day.